Who overthinks everything? Who showers less? Who is always eating? Who has a nicer butt? Who is more possessive? Who drools more? Who is a better driver? Who curses more? Who always sleeps in? Who is always on their phone? Hi, my beautiful, beautiful, beautiful people. I'm back again with the live session that was supposed to be conducted with Protsahan a couple of days back. But unfortunately, because of network issue, we could not connect then. Hopefully, आज उनसे हम live session connect कर पाए and we are able to connect and I'm able to let you know their story. So we have Sanjana from this NGO and we have Preeti. So I will be sending both of them request and they will be connecting with us. So okay. That on my lap to connect. Just a second, please. Hi Preeti, hi Sanjana. Hi. Thank you. आपके वक्त के लिए thank you so much. And I'm so happy and glad कि finally हम connect कर पाए. Yeah, thank you so much for having us. Yes, thank you so much. तो आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं इस लाइव सेशन में मैं उन्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से आप लोगों के बारे में देती हूँ उसके बाद आई वुड वांट यू टू स्पीक अबाउट योर एनजीओ सो प्रोत्साहन एनजीओ जो है वो दिल्ली बेस्ड एनजीओ है और वो ग्रास रूट लेवल पर काम करता है विद डिस्ट्रेस्ड चिल्ड्रन एंड वी हैव these wonderful souls here जो कि प्रोत्साहन के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं and I would want them firstly to talk about कि प्रोत्साहन की जो कहानी है और जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई और वो क्यों शुरू हुई I think to talk about the start journey, Preeti would be the best person because she has been working with the organization for the last 8 years. So I will let Preeti speak about it. Yes, Preeti बताइए. Okay. तो मैं प्रोत्साहन से 9 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ. जब प्रोत्साहन पाँच मतलब 20-25 लड़कियों के साथ काम कर रहा था. अभी प्रोत्साहन के 4 सेंटर्स हैं. तीन सेंटर्स जो है वो उत्तम नगर एरिया जो दिल्ली का स्लम एरिया है वहाँ पे है और एक सेंटर द्वारका में है और ऑलमोस्ट मिला के हम 500 लड़कियों के साथ अभी काम करते हैं चारों सेंटर्स को मिला के. एंड हमारा जो है मेन फोकस जो है गर्ल्स के ऊपर है. मेन काम जो हम लड़कियों के साथ करते हैं. अभी कोविड के दौरान हम इन 500 लड़कियों के साथ इनके साथ ऑनलाइन कॉल्स के द्वारा टच में हैं और इनके साथ हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम इनको प्रोटीन किट प्रोवाइड करते हैं, राशन किट प्रोवाइड करते हैं और प्लस लर्निंग सीट्स देते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, उनके पास और कीपैड फोन्स है तो उनको लर्निंग सीट के थ्रू हम सेंटर से जोड़ के रखते हैं. और सेकंड हम ये करते हैं कि बहुत सारे लाइफ स्किल्स के ऑनलाइन सेशन और चाइल्ड राइट, जेंडर, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑनलाइन क्लासेस हम बच्चों को दे रहे हैं. इसके अलावा हमारा जो है वो स्लम कम्युनिटीज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोविड के दौरान मम्मी पापा कोविड में खत्म हो गए हैं. तो उन बच्चों के साथ किसी के दोनों पेरेंट्स खत्म हो गए, मम्मी पापा दोनों, तो उनको हम बेसिकली प्रोटीन किट, राशन और उनको एजुकेशन सपोर्ट, राशन सपोर्ट सब मुहैया करा रहे हैं. तो जो भी असहाय दयनीय स्थिति में है उनकी हम ग्राउंड लेवल पे मदद कर रहे हैं. वाह, वंडरफुल.
Just to Sanjana, you want add to what add? Preeti Yeah. has said, yeah. Pratsan has been working with the slum communities for the last 11 years. We started in 2010, जहाँ पर these slum communities are the most marginalized spaces, and not much intervention is there. So Sonal, who is our founder, she started the organization with few children, as Preeti described, and since then we have been working in the spaces of child rights, child protection, gender-based violence, healthcare. But if you see the heart, the DNA of Protsahan is the heart model, where we talk about healing through education, art, recovery, and technology. All our Protsahan's interventions are embedded in healing, because we believe that healing is an important component for anybody's growth, and for the holistic development of the child. So we use a lot of art and creation, who is an artist herself. You would understand the role of healing, and bringing more joy and happiness to the world. So yeah, we have been using a lot of art and creativity to heal the children for the last 11 years. Wonderful, wonderful, wonderful. I mean, you girls are inspiring. और आप जो काम कर रहे हैं, that needs to, this message needs to reach to millions other, so that वो भी अपना bit कहीं ना कहीं through their contribution, through their own participation वो रहे. So I want to know, ये प्रोत्साहन जो NGO है, ये कितना पुराना है? I mean, since how many years it has been established now? 11 years. 11 years. 11 years. तो इन 11 सालों में आपने कितने बच्चों की मदद की है, और वो बच्चे आज भी क्या आपके कांटेक्ट में है, कहाँ वो सेटल हुए हैं, हाउ वेल आर दे डूइंग? सो जस्ट लेट अस नो अबाउट दैट आल्सो. तो समझना नो प्रीति, गो अहेड. क्या आप बताओ. अच्छा, तो हमारे साथ 11 सालों से हम मतलब प्रोत्साहन चल रहा है. तो बेसिकली जो सबसे पुरानी बच्चियां हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, वो अलग अलग अपनी फील्ड में आगे बढ़ी हैं और जॉब कर रही हैं और अर्न कर रही हैं, और अपनी फैमिली में वो एक मतलब उनका कहना है कि जितना सपोर्ट उनके ब्रदर्स नहीं करते, वो जॉब नहीं कर रहे, उतना वो घर में ला के दे रहे हैं एक मर्द की तरह. तो बहुत सारी हमने जो लड़कियों को बहुत सारे फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग, मतलब छोटे छोटे वो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, आप बहुत सारी इन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं और वीडियोस बनाए हैं, और इन मेहंदी में मेहंदी क्लासेस मतलब लड़कियों को ये सिखा रहे हैं. कुछ टीचर बन गई है, कुछ हमारे प्रोत्साहन में यूथ पीयर लीडर्स के पोस्ट पे काम कर रही हैं. तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, और कम से कम मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो है 100 लड़कियां ऐसी होगी जो हमारे सेंटर से कुछ लाइफ स्किल्स सीख के और आगे जॉब्स कर रही हैं. अरे वाह, फैंटास्टिक. जस्ट एडिंग टू व्हाट प्रीति हैज सेड, तो हम लोग 48 अभी करंटली वी आर वर्किंग विद 48 स्लम कम्युनिटीज डायरेक्टली, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं. इसके अलावा वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स for educators, for NGOs who are not equipped with all the information and knowledge in the spaces of child rights, child protection. So our outreach is beyond our 4 centers that we have in Delhi. And as Preeti said कि sorry, जिन कम्युनिटीज में हम काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जिनके पास स्पेशली जब लड़कियों की, किशोरी लड़कियों की बात करें, तो हम सबको पता है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ जेंडर बेस्ड violence and abuse that happens. So most of the girls that we work with are survivors of child abuse, or they have faced incest or violence at their homes, and so these are the backgrounds that these children come from. And then coming to the center where when they come into the center, they come with zero confidence and zero agency onto their lives. And when they get out of the center, when they pass the years, they become more empowered and they start believing in themselves. Like Preeti, हमारे youth peer leaders है जो अभी हमारे साथ काम